Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, yes, we are studying the lesson number 8, static electricity. Now, yes, let's see, do you know on page number 53, it's about 2005 years ago, a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow colored amber which had been rubbed against a woolen cloth. Amber is called electron in the Greek language. Therefore, this property of amber to attract the thing was named electricity by Thomas Brown in 1646 AD. Now here both scientists its portraits are given, Thales and Thomas Brown. Now frictional electricity. Okay, so yes, in this lesson we have to yes learn about the static electricity. Under that we have to see the frictional electricity, means electricity produced when there is a friction or rubbing of the two surfaces called the frictional electricity. जब हम कोई दो चीज़ों को आपस में रगड़ते उस टाइम जो करंट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. Okay, as we have seen here, when the yes rod of yellow colored amber rubbed against the woolen cloth, so there is a yes property of the development of the yes electricity. So such type of the electricity called as the frictional electricity. Electric charge generated by friction is called as the frictional electricity. This charge is produced only at the place of the friction. ये चार्ज जहाँ पे क्या है फ्रिक्शन होता वहीं सिर्फ प्रोड्यूस होता है. Hence it is called as the static electricity. It remain on the object for a short duration and this static electricity remain for a short duration. ये short time के लिए ही वहाँ पे ये present रहता है. The charges of the static electricity are absorbed in the moist air. Charges of static electricity are absorbed in the moist air. That is why this experiment should be performed in the dry weather, particularly in the winter. Okay, because yes, these charges can absorb in the moist air, so that's why these are done in the this experiment dry weathers. मतलब सूखे weathers में क्या है ये इसका क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नॉट इन रेनी सीजन. apparatus, a few straw, woolen cloth, socks or gloves and glass bottle. So yes, for doing this activity we have to yes we required the straw, few straw means plastic के क्या है ये पाइप है. woolen cloth, ओनी कपड़ा. अब ओनी कपड़े की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, कौन से क्या चीज़ें ले सकते हैं कि कौन से क्लोथ्स ले सकते हैं, सॉक्स और ग्लव्स. ओके, एंड ग्लास बॉटल, और ग्लास की क्या लेना, बॉटल. नाउ ये प्रोसीजर. प्लेस ए स्ट्रॉ ऑन ए बॉटल, प्लेस ए स्ट्रॉ ऑन ए बॉटल. स्ट्रॉ को कहाँ पे रखना है, बॉटल पे. टेक एनदर स्ट्रॉ नियर इट, क्या करना है हम लोगों को, प्लेस स्ट्रॉ ऑन ए बॉटल, टेक एनदर स्ट्रॉ नियर इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे बॉटल के ऊपर एक स्ट्रॉ रखना है और उस स्ट्रॉ के नज़दीक हाथ में पकड़ के दूसरा भी स्ट्रॉ लाना है. लीव द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज़, rub the other straw against a woolen cloth and take it near the straw on the bottle. तो what we have to do here, क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे जो क्या है ये जो बॉटल है, ठीक है, ये जो बॉटल है इस बॉटल के ऊपर एक स्ट्रॉ रख देना है. क्या करना है, एक स्ट्रॉ को रख देना है, ठीक है. और उसके बाद जो एक दूसरी स्ट्रॉ लेना है, सेकेंड स्ट्रॉ को, उस स्ट्रॉ को क्या करना, वूलन क्लॉथ पे रब करना है, रगड़ना है. ओके, रबिंग करना. रगड़ने के बाद क्या करना है, दूसरे स्ट्रॉ को इस स्ट्रॉ के नज़दीक लाना. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रॉ एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रॉ. ओके, ये क्या करना है हम लोगों को, दूसरे स्ट्रॉ को
उसके नज़दीक में लाना है, क्लोज में लाना है, तो व्हाट विल हैपन दैट वी हैव टू सी। ये क्लियर हो गया क्या करना है एक्टिविटी में। yes, you have to take one bottle. On that bottle you have to place one straw, and yes, you have to take another straw, and that straw should be rubbed against the woolen cloth. उसको woolen cloth से क्या करना है, रबिंग करना, रगड़ना है। Observe what happened. Now take the two straw and rub them against woolen cloth at the same time. तो ये उसके बाद क्या करना, नज़दीक लाना है, उसको ऑब्जर्व करना है। नाउ टेक द टू स्ट्रॉ एंड रब देम अगेंस्ट वुलन क्लोथ। नाउ टेक द टू स्ट्रॉ, अब दो स्ट्रॉ लेना है, एंड रब देम, और उसको क्या करना है, रब करना है, रगड़ना है, अगेंस्ट द वुलन क्लोथ एट द सेम टाइम। और उसको क्या करना है, उन दोनों को साथ साथ में ऊनी कपड़े पर रगड़ना है। कीप वन ऑफ द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एंड टेक द अदर नियर इट। अब क्या किया हम लोगों ने, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, yes, we have taken the two straw and we have rubbed on the, yes, woolen cloth together, and then from that too, yes, one we have to keep on the bottle, and next one we have to, yes, hold in the hand, and then we have to bring that, yes, straw near the straw which is placed on the bottle. See what happens. Keep the rubbed straw on the bottle as it is. Take the woolen cloth on which it was rubbed close to it. अब क्या करना है, कीप वन स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एंड टेक द अदर नियर इट, एक उसके नज़दीक लाना है, और उसके बाद क्या होता है वो देखना है। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो इस एक्टिविटी का है, कीप द रब्ड स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज़, फिर से क्या करना है, एज इट इज़ को रब्ड किया हुआ स्ट्रॉ को रखना है। टेक वुलन क्लोथ ऑन विच इट वॉज रब्ड क्लोज टू इट। अब इसके बाद में क्या है, जिस कपड़े पे, जिस ऊनी कपड़े पे इसको रगड़ा गया था, उस कपड़े को ही क्या करना है, इस स्ट्रॉ के नज़दीक लाना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन विच द अबो प्रोसीजर इन द चार्ट। नाउ ये प्रोसीजर, रिपल्शन, अट्रैक्शन और इन्फरेंस। ए चार्ज स्ट्रॉ इज टेकन नियर द अनचार्ज स्ट्रॉ। ए चार्ज स्ट्रॉ इज टेकन नियर द अनचार्ज स्ट्रॉ। तो व्हाट विल हैपन, यस, अर्लियर first, yes, क्या है part of this, yes, activity, what we have done, yes, we have placed one straw on the bottle, and next one, yes, rubbed against the, we have rubbed against the, yes, that woolen cloth. So what will happen now, yes, next one, the two straw carrying similar charges are brought near each other. So here what will happen, yes, the two straw rubbed against the wooden cloth, so there will be formation of the same type of the charges. So here there is a repulsion. तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाल में, yes, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन होगा। ए चार्ज स्ट्रॉ एंड द अपोजिटिवली चार्ज क्लोथ वॉज यूज फॉर रबिंग आर ब्रॉट नियर ईच अदर। तो हियर अट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस, हियर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, यहाँ पे रिपल्शन, और यहाँ पे फर्स्ट वन में, यस, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। Okay, so it means in the second one, yes, there is a attraction. In the first, okay, first, yes, what you will write, okay, yes, there is no attraction and no repulsion sign. Yes, for attraction and repulsion there should be, yes, development of the charges. And in second one what you will write, there is repulsion between the same charges, and in third one you have to write that, yes, there is a, yes, attraction between the oppositively charged, yes, oppositively charged object, or yes, oppositively charged, yes, ion. So there is a attraction. Now see, electrically charged object attract the uncharged object. Electrically charged object attract the uncharged object. There is repulsion between the like charges, there is attraction between the unlike charges. Hence repulsion is used as a test for identifying an electrically charged object.
तो what we have seen, there is attraction between the charged object and uncharged object, and there is a repulsion between the two same charges, and there is a yes attraction between the two oppositively charged yes object or two oppositively charges. Take thermocol balls or mustard seeds in the bottle and shake the bottle vigorously. The seeds try to move away from each other but stick to the bottle. Why does this happen? क्या बोला है? टेक थर्माकोल बॉल, थर्माकोल के बॉल से लेना है और मस्टर्ड सीड, या तो क्या है ये सरसों के सीड्स लेने हैं इन अ बॉटल, बॉटल में शेक द बॉटल विगरसली, और बॉटल को जोर जोर से क्या करना है? ये शेक करना, हिलाना है. द सीड ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द अदर, ये सीड्स ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. अब यहाँ पे क्या होगा? सीड एक दूसरे से दूर भागते हैं बट स्टिक टू द बॉटल, लेकिन बॉटल से चिपकते. वाई डज दिस हैपन? बिकॉज यस व्हाट हैपेंस, लेट्स सी अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम. डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि ये सपोज दिस इज द ये क्या है? बॉटल. ओके, ये जो बॉटल है, अब इसके अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, ये थर्माकोल के बॉल्स लेते हैं. ओके, थर्माकोल के जब हम बॉल्स अगर लेते हैं और उसको क्या करते, क्लोज करके विगरसली शेक करते हैं, उसको जब शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टू अपोजिटिव चार्जेस ऑन द यस दैट जार एंड इन द यस थर्माकोल बॉल्स और यस मस्टर्ड सीड्स. तो क्या होगा? यस, ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं, मस्टर्ड सीड्स और इस बॉटल में, ये दोनों में क्या होंगे? अपोजिटिवली चार्ज, अपोजिट चार्ज क्या होगा? डेवलप होगा. बट इन द थर्माकोल बॉल्स देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ द चार्ज. जो थर्माकोल बॉल होगा उसमें सिर्फ एक टाइप का चार्ज होगा, या मस्टर्ड सीड्स जो होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक टाइप का चार्ज होगा. तो यस, वन टाइप ऑफ द चार्ज विल बी डेवलप ऑन द थर्माकोल बिकॉज यस मटेरियल इज सेम, और yes one type of the yes charge will develop on the mustard seed because yes because that yes mustard is made up of same material. So now yes the charge on the all mustard will be same, or the charge on the all thermacols ball will be same, but the charge on that bottle will be different. So what happens on shaking, that mustard or thermocol stick to the bottle, because yes on the bottle and that thermocol ball, or you can say mustard, the opposite charge are present, but in between the yes that in between that mustard seeds or in between that thermocol ball there is repulsion, there is repulsion. उन दोनों में क्या होगा? ये रिपल्शन होगा बिकॉज लाइक चार्जेस आर डेवलप ऑन द मस्टर्ड और थर्माकोल. लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज उसके ऊपर क्या है? डेवलप हुए हैं. नाउ ट्राई दिस. अब क्या करना है? ये इसको हम लोगों को क्या करना है? ट्राई करना है. ओके, लेट्स सी. अंडरस्टूड? इसका यस आंसर मिल गया आप लोगों को कि यस वाई थर्माकोल बॉल्स यस स्टिक टू दैट बॉटल बट दे यस थर्माकोल्स बॉल्स यस रिपल टू ईच अदर, आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे से रिपल करते हैं, लेकिन बॉटल से अट्रैक्ट हो जाते हैं. नाउ यस ट्राई दिस. नेक्स्ट वन यू हैव टू सी. टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट, रब ए प्लास्टिक कॉम अगेंस्ट द पेपर. अब क्या करना है? एक प्लास्टिक की क्या लेना है हम लोगों को? क्या लेना है? ये प्लास्टिक की कॉम लेना है एंड वी हैव टू रब ऑन द पेपर, और पेपर पे उसको क्या करना है? रगड़ना है. टच दिस कॉम विथ अनदर अनचार्ज कॉम. अब क्या करो? इस कॉम को, कॉम मतलब कंघी, उस कंघी को क्या करना है हम लोगों को? दूसरे दूसरे ये क्या है? कॉम को टच करना है जो कि अनचार्ज है. क्या है वो? अनचार्ज. उससे क्या करना है हम लोगों को? रगड़ना है, रबिंग करना है. टच दिस कॉम विथ अनदर अनचार्ज कॉम, टेक द अदर कॉम नियर सम पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपेंस. तो अब क्या करो? ये क्या है? वो दूसरा जो कॉम जिसको हमने क्या है? पेपर पे रगड़ा नहीं था, वो दूसरा कॉम जिसको हमने पेपर पे रगड़ा नहीं था, उसको क्या करना है? ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के नज़दीक लाना है
एंड देन यस व्हाट विल हैपन दैट वी हैव टू सी, तब हम लोगों को देखना है कि क्या यस वहाँ पे हो रहा है। ओके अंडरस्टूड हियर। तो क्या व्हाट विल हैपन if we bring the yes that charged object in contact to uncharged object, that yes on that uncharged object the charge will develop। ओके जो अनचार्ज होगा वो उसमें पे भी चार्जेस डेवलप हो जाएंगे एंड देन दैट विल अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट विच हैव द अपोजिट चार्ज। तो वो जो क्या होगा ये जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ तो वो क्या होगा, वही चार्ज क्या होगा दूसरे जिसके टच में हम दूसरे कॉम्ब को लाएंगे उस पर भी वो सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा। और वो क्या करेगा सेकेंड कॉम्ब भी जो दूसरे जो क्या है ये अपोजिटिवली जो कॉम्ब के ऊपर डेवलप चार्ज है उसके अपोजिट में जो डेवलप चार्ज होगा ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। नाउ सेकेंड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। अब क्या करना है हम लोगों को इंडक्शन के थ्रू दूसरे चीज़ को चार्ज करना है। अभी पहले में क्या देखा हम लोगों ने कि कैसे कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया, टच किया, कांटेक्ट में लाया। कांटेक्ट मतलब इधर क्या है टच, उसको टच करने से उसको छूने से क्या हो गया दूसरा जो अनचार्ज था वो भी चार्ज हो गया। और नाउ ये टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। अब यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस से क्या करना दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। तो ये कैसे पॉसिबल है लेट्स सी। रब ए कॉम और बलून ऑन योर हेयर। एक रब ये कॉम को कंघी को या बलून को अपने हेयर पे क्या करना है रगड़ना है, वो हेयर क्या रहने चाहिए ड्राई। एज शोन इन द पिक्चर टेक द कॉम नियर ए थिन ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप। और उसके बाद जैसे कि क्या दिखाया है हम लोगों को इसमें दिखा है ये देखा है ये टैप टैप से क्या गिर रहा है पानी। और यहाँ पे क्या है ये जो कॉम था उस कॉम को हमने क्या किया ये रब किया, रगड़ा था किस पे हेयर्स पे। तो क्या दिखाई दे रहा है ये वाटर है वो कैसे दिख रहा है, इस गिर रहा था ऐसे स्ट्रेट गिर रहा था। बट क्या हो गया यहाँ पे ये जो फ्लोइंग वाटर है उसको उस कॉम ने क्या किया अट्रैक्ट किया। इवन दो यस दे बोथ आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जबकि ये दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है, इन दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है। कैसे देखो ये क्या हो रहा है ये पानी नल से इस तरह से स्ट्रेट गिर रहा था। ओके तो अब देखो यहाँ पे ये हमने क्या किया जो दूसरा जो कॉम्ब है ये जो कॉम्ब जो दिखा रहा है ये कॉम्ब, उस कॉम्ब को हमने क्या किया था ड्राई हेयर पे क्या किया था रबिंग किया था, क्या किया था रब। तो व्हाट विल हैपन, तो हियर दिस चार्ज्ड कॉम्ब अट्रैक्ट द यस फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर को क्या करता अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। even though there is no direct contact between the water and comb, जबकि क्या कॉम्ब और वाटर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जी मैडम। ये सब हटाने का है, ये सब जरा हटाओ, उसको सामान यहाँ लगाओ और कल वो मौसी इनको लोग साफ करो। आप लोग कितना गंदगी में बैठ रहे हो है ना, इसको सब उठा उठा के कल मौसी आएंगे उसके साथ जरा लग जाना। ये सब सामान है ना बेटा, ये सब सामान है ना ऊपर उठा के रख देना और मौसी बोलो मौसी कल वो मत साफ करो ये साफ करो है ना। कल यहाँ देखो तुम लोग यहाँ बैठते हैं कल को लेंगे। Rub a comb or balloon on your hair as shown in the picture. Take the comb near a thin trickle of the water from tap. See what happens. Now draw the comb away from the trickle and observe what happens. ओके तो क्या करना है इसमें जो ये पानी गिर रही है उसकी धार के नज़दीक कॉम्ब लाना है और उसके बाद में क्या करना है ये कॉम्ब को थोड़ा पीछे खींचना है। तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा, मार्क योर ऑब्जर्वेशन विथ द टिक, करेक्ट का मार्किंग करना है। फर्स्ट वन when the charge comb, when the charge comb when the charge comb is brought close to the flowing water, water get attracted, repelled, remain as it was। अब यहाँ पे क्या करना है ये मेक योर ऑब्जर्वेशन विथ टिक। तो इसमें से क्या होता है व्हेन चार्ज कॉम्ब इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के अगर नज़दीक लाते हैं तो वाटर गेट अट्रैक्टेड, रिपेल और रिमेन एज इट इज़। तो क्या होगा अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। व्हेन द चार्ज कॉम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर,
When the charge com is taken away from the flowing water, it get attracted, repelled, remain as it was finally. तो क्या होगा? Attract होगा. At first, the flow of water is not charged. At first, flow of water is not charged. When a negatively charged comb comes near the flowing water, the negative particles in its nearest comb are pushed away. क्या बताया? ये फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट चार्ज. जो क्या है? ये जो पहले इनिशियली व्हेन द कॉम्ब वाज नॉट ब्रॉट नियर द फ्लो ऑफ वाटर दैट टाइम, यस द वाटर दैट फ्लोइंग वाज नॉट चार्ज. उस टाइम वो क्या है? चार्ज नहीं था. व्हेन नेगेटिवली चार्ज कॉम्ब कम्स नियर द फ्लोइंग वाटर, अब उसके बाद जब कॉम जो है उस कॉम को, चार्ज कॉम को उसके नज़दीक लाते, बहते हुए पानी के नज़दीक, द नेगेटिव पार्टिकल इन इट, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते कॉम में, इन इट नियरेस्ट टू कॉम आर पुश्ड अवे. द नेगेटिव पार्टिकल इन इट नियरेस्ट द कॉम आर पुश्ड अवे. तो उस टाइम जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं यस उस कॉम के, वो क्या होते हैं? यस पुश्ड अवे, मतलब वहाँ से दूर जाते हैं. दैट पार्ट बिकम पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द नेगेटिव चार्ज. तो वो पार्ट क्या हो जाता? पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव लेस, yes, because of decreasing the negative charge. Comb has negative and water has positive charge. Due to the attraction between these oppositive charge, flowing water attracted toward the comb. When comb is taken away, the negative particle in the flowing water come back to their original position. When comb is taken away, what happens? The negative particles in the flowing water come back to their original position and positive and negative charges become equal in number. As result, water becomes uncharged again and stop getting attracted toward the comb as it was away from it. Okay, so what we have seen, when any charged particle, when any charged substance are brought near uncharged yes things, then there is a yes transfer of that charges to that substance which is nearest to that charge body, and when it is taken away, that time yes it come to its original state. Always remember, number of positive and negative charges are equal on an uncharged or neutral object. Number of positive and negative charges are equal on an uncharged and neutral object. This electric charge generated by induction stays only as long as the charged object is near to it. ओके, ये इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय इंडक्शन मेथड से जो क्या है, ये जो चार्ज डेवलप होते हैं वो तब तक मौजूद रहते हैं जब तक कि चार्ज ऑब्जेक्ट उसके नज़दीक होता है. एज वी हैव सीन यस इन दिस एक्टिविटी, जैसे कि इस एक्टिविटी में देखा हम लोगों ने. Okay, understood the explanation. What happens in the yes is in the induction and what happens in the by direct contact. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या होता है और इंडक्शन में क्या होता है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट. ओके, नाउ यस ट्राई दिस नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी देखना है हम लोगों को. कीप अ स्पेन ट्यूबलाइट इन अ डार्क place. Keep a spent tube light in a dark place. Rub it with vigorously with a thin polythene bag. What happens and why? अब देखो क्या करने बोला हम लोगों को. ये क्या करना है, ये स्पेंट ट्यूबलाइट जो क्या है ये आउट ऑफ यूज है, क्यों क्या है काम का नहीं. ऐसे ट्यूबलाइट को हम लोगों को क्या करना है, ये रब करना है जोर से इस पॉलीथीन बैग के साथ. प्लास्टिक की जो बैग्स आती पॉलीथीन की उसके ये साथ में उसको रब करना है. व्हाट हैपेंस एंड वाई, क्या होता है. व्हेन एन अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल इज ब्रॉट नियर द नेगेटिवली चार्ज बलून फ्लोइंग फॉलोइंग थिंग्स हैपन. अब देखो ये इसमें सेकेंड पार्ट जो है क्या दिया है. व्हेन अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल, ये एल्यूमिनियम का एक बॉल है जिसमें कोई चार्ज नहीं है. एंड दिस इज ब्रॉट नियर द निगेटिवली चार्ज बलून. अब इसके बाद में जब बलून को हम रब करते तो उसके अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज डेवलप होता है.
तो निगेटिवली चार्ज बलून के नज़दीक अगर हम क्या लाते हैं, एल्युमिनियम बॉल को लाते हैं, तो क्या है ये फॉलोइंग थिंग्स हैपन। तो क्या क्या होता है दैट वी हैव टू सी। एज शोन इन फिगर ए, an opposite charge is generated in the other object by induction and both the object get attracted to each other। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एल्युमिनियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्या है ये यहाँ पे जो बलून है उसके ऊपर क्या है ये निगेटिव चार्ज है। तो हम लोग जब क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाते हैं, तो जो बलून का जो क्या है ये चार्ज, बलून का जो निगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए ये क्या है, एल्युमिनियम के पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ अट्रैक्शन, तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। As shown in figure A, an opposite charge is generated in the other object by induction and both object get attracted to each other। तो जब हम लोग क्या करते हैं, यस कोई भी चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज पार्टिकल के पास लाते हैं, तो उस अनचार्ज पार्टिकल में भी क्या होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसे कि बलून में निगेटिव चार्ज था, तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट बोथ ऑब्जेक्ट गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, इसलिए एक दूसरे के तरफ वो क्या होते, अट्रैक्ट हो जाते हैं। एज शोन इन फिगर बी, ऑन टचिंग बोथ ऑब्जेक्ट बिकम सिमिलरली चार्ज। जब हम कोई चीज़ को किसी से टच कर देते हैं तो उन दोनों में सेम चार्ज डेवलप हो जाता है। एज शोन इन फिगर सी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो एक दूसरे से वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। तो yes, what we have learned here, yes, when any charge object brought near to uncharged object, brought near, okay, नज़दीक ला रहे, उसको टच नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे, उसके नज़दीक ला रहे, तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उस अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। जैसे कि यहाँ पे बलून है, तो बलून के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। एंड ये दोनों चार्जेस अपोजिट होते, दैट्स वाई अट्रैक्शन इज शोन। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एरो टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ एरो दिखाई देते, तो मतलब यहाँ पे दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। और अगर हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट से टच कर देते हैं, क्या कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो जब हम टच कर देते हैं उस टाइम क्या होता है, ये जिस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं उसके ऊपर भी सेम चार्ज डेवलप होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ रिपल्शन, इसकी वजह से दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इस कॉम और इस फ्लोइंग ऑफ वाटर के बीच में देखा, जब हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉम को जो चार्ज था, निगेटिवली चार्ज था, उसको अगर हमने क्या है इस फ्लोइंग वाटर की तरफ लाया, तो इनिशियली क्या हुआ, यस उस फ्लोइंग वाटर पे सॉरी, यस उस फ्लोइंग वाटर पे क्या है, ये निगेटिवली चार्ज डेवलप हो गया। एंड सॉरी यस फ्लो कॉम पे निगेटिव चार्ज था और वाटर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे अट्रैक्शन, बिकॉज यस कॉम क्या है, नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द दैट फ्लोइंग वाटर। ओके, क्लियर हो गया, तो इसलिए उसके अंदर क्या हुआ, यस अट्रैक्शन हुआ। नाउ यस नेक्स्ट पार्ट, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब क्या देखना है हम लोगों को, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस इज अ सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने का ये क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है। तो दिस इज द सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने का एक डिवाइस है, एंड इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर रॉड which has a metal disc at the upper end and the two thin gold leaves at the other end. Now yes, its construction, जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉपर रॉड, इसके अंदर क्या होते हैं, कॉपर के रॉड होते हैं। विच हैज़ अ मेटल डिस्क, जो क्या है, इस जिसमें मेटल डिस्क से अटैच रहते, एट द अपर एंड एंड द टू थिन गोल्ड लीफ एट द अदर एंड। तो नाउ ये सी,
यस जो ये पार्ट दिख रहा है हम लोगों को, ये पार्ट ये क्या है, ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, किसका है, कॉपर का। और ये जो पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, ये वो डिस्क है, क्या है वो, DISC डिस्क, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, ये गोल्ड, क्या है ये, गोल्ड लीफ, ठीक है, ये समझ में आया। तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर रॉड, ये जो अंदर ये लंबा से जो दिख रहा है वो कॉपर की रॉड है, विच हैज़ द मेटल डिस्क एट द अपर एंड, ऊपर के हिस्से पे ये क्या है, ये डिस्क है मेटल का बना हुआ, प्लेस इन द बॉटल सो दैट डिस्क इज अबोव द बॉटल। ओके, ये इसके पार्ट समझ में आ गए सभी को कि कहाँ पे डिस्क है, कहाँ पे रॉड है और कहाँ पे गोल्ड लीफ्स है। द रॉड The rod is placed in the bottle so that disc is above the bottle. When an uncharged object is taken near the disc, when an uncharged object is taken near the disc, the lips remain closed. ओके क्या होता है ये, जब हम लोग कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ये डिस्क के नज़दीक लाते हैं तो लिप्स रिमेन क्लोज, तो क्या रहता है, उसकी लिप्स क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, मतलब एक दूसरे से टच रहता है वो। When a charged object is taken near the disc, both the lips are charged by the same electric charges and repel each other. अब जब हम लोग कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को क्या है इसके नज़दीक लाते हैं तो क्या हो जाता है, यस ये जो गोल्ड लीफ है वो दोनों गोल्ड लीफ में लाइक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, दैट्स वाई यस दे रिपेल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। That move away from each other or open up. When we touch the disc with our hand, the leaves collapse. When we touch the disc with our hand, the leaves collapse because the charge in the leaves goes into the earth through our body and leaves get discharged. तो जब हम लोग क्या करते हैं, यस जिनको हाथ से जब टच करते तो जो इनके अंदर जो चार्ज डेवलप रहता है वो अपने हाथ से यस क्या है ज़मीन के अंदर चले जाता है और ये क्या होते हैं, लिफ्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो क्या करना पड़ता है इसके लिए, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी चीज़ के ऊपर चार्ज है कि नहीं है इसके लिए ये डिवाइस यूज़ होता है। ओके जब क्या है ये अगर कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट को इसके नज़दीक लाएंगे तो उस टाइम क्या होगा, ये जो लीफ है ये गोल्ड के बने हुए है, ये गोल्ड मेटल का जो बना हुआ वो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे। लेकिन जब चार्ज ऑब्जेक्ट को इससे टच करेंगे डिस्क से तो क्या होगा, डिस्क के अंदर जो कॉपर है, कॉपर क्या है कैरी करता है चार्ज को, तो वो यस कहाँ तक कैरी करता है, गोल्ड लीफ के। तो क्या होगा, यस ऑन टचिंग वी हैव लर्न दैट यस किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम टच करते किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है, ये सेम चार्जेस डेवलप होते, तो जो गोल्ड के दो लीफ है उसमें दो सेम चार्जेस डेवलप होते हैं और सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, ये रिपल्शन, तो इसलिए दोनों के दोनों लीफ जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। use your brain power, can we use leaves of the some other metal instead of the gold in the electroscope, which property must that metal have? So yes that metal have the yes property of conduction of the electricity, means that should be very good conductor of the electricity or charge, ये होना चाहिए। Great scientist, in the year 1752 Benjamin Franklin conducted an experiment of flying a kite with his son विलियम। ओके ये 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसमें क्या किया उन्होंने, ये काइट को अपने सन के साथ में क्या किया, उड़ाया। काइट मीन्स पतंग, तो पतंग को अपने ये सन के साथ में उड़ाया। द काइट वॉज मेड यूजिंग सिल्क क्लॉथ, द काइट वॉज मेड यूजिंग सिल्क क्लॉथ, देवदार वुड एंड द मेटल वायर। अब ये जो काइट था उसको सिल्क के कपड़े से बनाया गया था, देवदार जो लकड़ी है उससे उसकी कांडी बनाई गई थी, एंड मेटल वायर, और मेटल वायर का इस्तेमाल किया गया था। द मेटल वायर वॉज ज्वाइंड इन ए सच वे दैट इट वन एंड वॉज एट टॉप ऑफ द काइट एंड अदर एंड वॉज ज्वाइंड टू द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। द मेटल वायर वॉज ज्वाइंड इन सच ए वे, मेटल वायर को इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस
ज्वाइन किया कि उसका एक एंड मेटल का इस काइट के टॉप से टच था और उसका दूसरा एंड क्या था, ये स्ट्रिंग ऑफ काइट से टच था। मतलब कि एक तरफ क्या था, एक जो मेटल इन्होंने यूज किया वो एक पतंग के ऊपर के हिस्से में टच था और नीचे वाले हिस्से में धागा बंधा था। देयर वॉज लाइटनिंग इन द स्काई एंड देयर वॉज लाइटनिंग इन द स्काई, और स्काई में क्या थी, लाइटनिंग ऑन द डे दे फ्लू द काइट। देयर वॉज लाइटनिंग इन द स्काई ऑन द डे दे फ्लू द काइट। उस दिन क्या है, इस स्काई में लाइटनिंग, ओके, जहाँ पे क्या है, ये बिजली चमक रही थी। व्हेन द मेटल वायर टच द क्लाउड, जब मेटल वायर ने क्या है, इस क्लाउड को टच किया, द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द क्लाउड टू द काइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, वहाँ पे क्लाउड से काइट में ट्रांसफ़र हुआ। देन लूज स्ट्रिंग ऑफ द काइट बिकम टॉट। तो जो ये लूज स्ट्रिंग थी काइट की, पतंग की, वो क्या हो गया, टाइट हो गया। एन इलेक्ट्रिक चार्ज रीच द अर्थ थ्रू द स्ट्रिंग, और क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज थी वो कहाँ से, उस पतंग से कहाँ पे आ गई, इस अर्थ में आ गई। ए स्पार्क वॉज सीन वेयर द स्ट्रिंग टच द अर्थ। जब ये क्या है, स्पार्क देखा गया, बिजली की क्या दिखाई दी गई हम लोगों को, चिंगारी, जब वो क्या है, स्ट्रिंग अर्थ को टच किया। दस ही सॉ दैट लाइटनिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उन्होंने इस तरह से शो किया कि लाइटनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक फॉर्म है, एक उसका रूप है। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या देखना है हम लोगों को, नेक्स्ट पार्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ सी हियर lightning, how the lightning occurs in the nature, that is shown here कि lightning है क्या और ये कैसे होता है। तो now see yes carefully, yes देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, yes ये क्या है, yes क्लाउड है, क्या है यहाँ पे, क्लाउड, हम लोगों को क्लाउड दिखाई दे रहा है। अब क्लाउड के जो क्या है, yes जो रेड वाले पार्ट क्या है, yes पॉजिटिव चार्जेस आर शोन, और जो नीचे दिख रहा है हम लोगों को ये क्या है, निगेटिव। मीन्स इन द क्लाउड देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द टू टाइप ऑफ द चार्जेस। अपर पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप टू द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड। जो क्लाउड है, क्लाउड के नज़दीक वाले हिस्से में क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और ऊपर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो क्या है, ये हम लोगों को क्या दिखाई दे रहे, पॉजिटिव चार्जेस दिखाई देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, यस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दिस नेगेटिव चार्ज डेवलप इन द क्लाउड एंड द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है हम लोगों को कि जो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज जो क्या है स्काई में प्रोड्यूस हुआ वो, और क्या है जो ज़मीन के ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन होता है। और ये दिस टेक्स प्लेस इन वेरी, यस क्या है, दिस टेक्स प्लेस वेरी क्विकली, और बहुत तेज़ी से ये होता है। एंड दैट टाइम द इलेक्ट्रिक चार्ज yes flow from the sky to the, और from cloud to the yes अर्थ की तरफ वो क्या होते हैं, वो फ्लो होते हैं। ओके अब यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ द मेनली द यस एयर जो है, और उसके बीच में क्या होती है, रबिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस